کیا پنجاب کے بچے محفوظ ہیں؟ بچوں کی جانوں کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ جو شاید ہر ماں باپ کے دل میں ایک سوال گونج رہا ہے کہ کیا پنجاب میں بچوں کو اسکول بھیجنا، ٹیوشن سینٹر پر بھیجنا آج محفوظ ہے؟ ناظرین، تھوڑے دن پہلے ڈیرہ غازی خان میں ایک نجی اسکول کی چھت گر گئی اور ابھی گزشتہ دن لاہور میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی۔ یعنی ایک کے بعد ایک سانحہ، اور بدقسمتی سے ایک ہی طرح کے سانحات ہو رہے ہیں۔ 14 بچے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، بن کھلی کلیاں مرجھا رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ ایک حادثے کے بعد اس طرح کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی اندوناک حادثہ نہ ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ سانحات در سانحات آخر یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ چند روز پہلے لاہور میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 معصوم بچے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، جبکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ڈیرہ غازی خان میں اسکول کی چھت گرنے سے 4 ننھی جانیں ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئی تھیں۔ یہ صرف 2 حادثے نہیں، یہ پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف بڑھیں، ایک اہم نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تہنا لاہور کے شہید بچوں کے لواحقین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان یقیناً قابل تحسین اقدام ہے اور ہم اس پر حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے متاثرہ خاندانوں کے لیے ایسا پیکج کیوں نہیں؟ اور ابھی حال ہی میں ملتانیوں کے مری میں وین حادثے میں جانے والی جانوں کے اوپر بھی یہی سوال ہے کہ ملتانیوں کے لیے اس دلخراش حادثے میں جہاں بحق ہونے والوں کے لیے اس طرح کا امدادی پیکج کیوں نہیں؟ کیا ملتان کے لوگ یا ڈیرہ غازی خان کے بچے انسانی جانیں نہیں ہیں؟ کیا حکومت کی نظر میں انسانی جان کی قدر علاقے کے نام کے ساتھ بدل جاتی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوا ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ خدا نخواستہ ایسا ہے۔ پورا پاکستان ہمارا پاکستان ہے، پورے پاکستان کے بچے، پورے پاکستان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں۔ خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے لنڈی کوتل تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں۔ اس لیے حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ اگر حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، ملتان کے لوگوں کے ساتھ سانحہ پیش آیا ہے، مری میں یا ڈیرہ غازی خان میں اسکول کی چھت گری ہے، تو ان کو بھی اس طرح سے ہی جو ہے ان کے زخم و مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی اشکشوئی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے امداد بہم پہنچانی چاہیے جیسے کہ لاہور میں تہنا کے حادثے میں 14 بچوں کی ہلاکت کے اوپر گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ان کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ مالی امداد اور اس طرح زخموں پہ مرہم رکھنا یہ پورے صوبے میں یکساں طور پر ہونا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ ملتان کے ایم پی ایز کا، ایم این ایز کا، ڈیرہ غازی خان کے ایم پی ایز کا، ایم این ایز کا، سماجی تنظیموں کا، لوگوں کا یہ حکومت سے گزارش بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ ملتان کے جو لوگ بری میں وین حادثے کا شکار ہوئے تھے اور ڈیرہ غازی خان کے اسکول کی چھت گرنے سے جو بچے جاں بحق ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہمدردی کی جائے اور ان کے لیے بھی جلد از جلد امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ناظرین، ذرا سوچیں، اگر اسکول کی عمارت محفوظ نہیں، اگر ٹیوشن سینٹرز کی عمارتیں محفوظ نہیں، اگر تعلیمی اداروں میں بچوں پر تشدد ہو رہا ہے، اسکول کی وینز محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہمارے بچے آخر محفوظ کہاں ہیں؟
और ये महफूज क्यों नहीं है? पंजाब में बच्चों की जानें खतरात के एक ना खत्म होने वाले दायरे में घिरी हुई हैं। चाहे सरगोदा में एक छोटी नन्ही फरिश्ता बच्ची दुकान पे जाती है घर का सौदा सरफ लेने, तो आप देखें कि उसके साथ कितना बड़ा अलमिया हुआ। तो ये खतरात सिर्फ एक शक्ल में नहीं है, बल्कि इनकी खतरात की मुख्तलिफ अशकाल हैं। खस्ता हाल तालीमी इमारतें। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि लाहौर और डेरा गाजी खां के सानहात ने ये हकीकत बेनकाब कर दी है कि कई स्कूल, ट्यूशन सेंटर और अकेडमियां आज भी गैर महफूज इमारतों में चल रही हैं। कहीं नाकिस तामीरात हैं, कहीं बरसों से मरम्मत नहीं हुई, और कहीं गैर मंजूर शुदा इमारतों में सैकड़ों बच्चे रोजाना तालीम हासिल कर रहे हैं। और फिर गैर महफूज स्कूल ट्रांसपोर्ट है। हजारों बच्चे रोजाना ऐसी वैन में सफर करते हैं जो गुंजाइश से ज्यादा भरी हुई होती हैं, जिनकी फिटनेस मशकूक है, जिनके ड्राइवर्स की तरबियत भी सवालिया निशान है, और बहुत सौ के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होते। और बहुत सारी वैन में एलपीजी गैस सिलेंडर लगे हुए होते हैं जो कि चलते फिरते बम है। और नाज़रीन, तालीमी इदारों में तशद्दुद की सूरत हाल से भी आप वाकिफ हैं। स्कूलों, कॉलेजों, मदारस में जिस्मानी और बाज़ औक़ात जिनसी तशद्दुद के वाक़यात न सिर्फ बढ़ रहे हैं, बल्कि ये पूरे निज़ाम की नाकामी को ज़ाहिर करते हैं। बच्चे खौफ के माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, असल मसला ये नहीं कि कवानीन मौजूद नहीं हैं, असल मसला ये है कि अमल दरामद नहीं होता। हर बड़े साने के बाद इंक्वायरी कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, चंद मुतनियां होती हैं, मीडिया पर शोर मचता है, और फिर सब कुछ मामूल पर आ जाता है। यहाँ तक कि अगला सानिया पेश आ जाता है। नाज़रीन, जब ये लिटिल स्कॉलर स्कूल का डेरा गाजी खां का साने आया था, तो हमने इस पे वीलॉग्स किए थे, और हमने उसमें ऊपरी काशवी मैयर और इकदाम भी बताए थे कि जो मुतलका इदारे हैं, एजुकेशन सेक्टर के हैं या सिविल डिफेंस के हैं या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, उनको क्या क्या इकदाम करने चाहिए। अगर हमारे उन वीलॉग्स पे कान धरा जाता और उन सिफारिशात पे, उन रिकमेंडेशंस पे अमल कर लिया जाता जो हमने अपने विस्ता व्लॉग में पेश की थी, तो हम ये लाहौर वाले हादसे से यकीनन बच सकते थे। नाजरीन, हम एक दफा फिर इस बात का अदा करेंगे कि लाहौर के काना के ट्यूशन सेंटर में जहाँ वक्त होने वाले बच्चों के लिए हुकूमत ने जो इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, वो बहुत अच्छा मुस्बत इकदाम है। लेकिन सवाल फिर यही है कि मुल्तान के लोग जो बरी में हादसे का शिकार हुए थे, और फिर बिलखसूस डेरा गाजी खां के बच्चे भी जो स्कूल की छत गिरने से जिन्होंने अपनी जान आफरीन के स्पुर्द कर दी थी, उनके लिए अभी तक इमदादी पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया गया। हुकूमत से गुजारिश है कि इनके लिए भी हुकूमत इमदादी पैकेज का ऐलान जल्द अज जल्द करे। हुकूमत की नज़र में हर बच्चे की जान इसको नुक्ता नज़र से हट के कि वो कहाँ पे रहायश पजीर है, हर एक इंसानी जान की हुर्मत और हर एक इंसानी जान की कदर कीमत एक जैसी ही होती है। हुकूमत की जानिब से स्कूलों में हिफाजती इकदाम बढ़ाने के ऐलानात भी आए हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल डिटेक्टर, सिक्योरिटी प्लान, बैग की चेकिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी वगैरह। ताकि ये तमाम इकदाम बज़ाहिर मुस्बत हैं, और अमले की भर्ती से पहले सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर से तस्दीक भी एक अहम कदम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नोटिफिकेशन काफी हैं या इन पर हकीकी अमल दरामद भी होगा। अगर वाकई बच्चों की जिंदगियां महफूज बनानी है, तो सिर्फ इमदादी चेक्स काफी नहीं। जरूरत इस बात की है कि पंजाब भर के तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारों बशमूल स्कूल, ट्यूशन सेंटर, अकेडमी का फौरी सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए। खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। स्कूल ट्रांसपोर्ट पर सख्त और बिला इम्तियाज कवानीन नाफिज किए जाए। तालीमी इदारों में तशद्दुद के वाकयात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, और गफरत बरतने वाले अफराद को सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, रियासत की कामयाबी इसमें नहीं कि हादसे के बाद इमदाद दी जाए। रियासत की कामयाबी इसमें है कि इस तरह के सिस्टम्स बना लें कि इस तरह के हादसा तो हो ही ना। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए जब कोई
इस तरह के हादसात की वजह से कोई बाप अपने बच्चे का जनाजा ना उठाए और कोई माँ अपने लख्ते जिगर को मलबे से ना निकाले, बच्चा स्कूल जाए और खैरियत से घर वापस आए, वही असल कामयाबी होगी। नाज़रीन, अगर आज हमने फिर ये सबक ना सीखा तो कल फिर कोई छत गिरेगी, कोई वैन हादसा होगा और हम फिर सिर्फ अफसोस ही करते रह जाएंगे। ये खालिसन इंसानियत का मसला है। बच्चों की हिफाजत का किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे सबके साझे होते हैं। नाजरीन, आप बताएं कि क्या आपके ख्याल में पंजाब के बच्चे वाकई महफूज हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि सोशल मीडिया के हवाले से आप लोगों का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरह के संजीदा मौज़ूआत को टेकअप करेंगे, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो फिर आप और हम मिलकर इंशाल्लाह ऐसी कानून साजी करवाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और इस तरह के प्रिकॉशनरी मैयर्स भी गवर्नमेंट को और इन तालीमी इदारों के मालिकान को लेने पड़ेंगे कि इस तरह के हादसात आइंदा पेश ना आए। लेकिन हम समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नाजरीन बड़ी ज़रूरी है, इससे पहले कि ये आग आपके घर तक पहुंचे, इस आग के आगे खुदारा बंद बांध दीजिए। हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। आप इस सदका जारिया में कम से कम इस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाजरीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।